Hello and a very good morning, everyone. Today we are going to discuss about the syllabus of COQP 22, which is for hospital management. So, as you all know, there will be 75 questions. Each and every question would be compulsory to attend, and it will be given in two languages, which is English and Hindi. So, coming on to the syllabus, uh, first would be health and disease concept. You should be aware of the dimensions and determinants of health, measures and indicators of health and related issues, natural history of diseases and sciences, primary healthcare services, hospital and its role in health and diseases. Then second point is environment and health. Effect of various factors like water, air, light, ventilation, noise, meteorological environment, humidity, housing, disposal of waste, then excreta disposal on health and well-being. Then the third point is medicine and social sciences, understanding the concept of in sociology of health, then psychology and health, social psychology, family and health and diseases, and understanding health, cultural factors in health and diseases, hospital sociology, social problems in health, basic health economics, social security, and health of population. Then the fourth point is hospital waste management. See, since the course is also regarding hospital management, so you should be aware about hospital management, biomedical waste management, methods of treatment एंड हेल्थ केयर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट है ना. फिर बेसिक एपिडेमोलॉजी एंड पॉपुलेशन हेल्थ एंड एपिडेमोलॉजी के बारे में जानना होगा, रेशियो एंड measures of morbidity and mortality, statistics for association and causation in biological sciences, concept and disease transmission, immunity and immunizing agents, disease prevention and control in India. Then the next topic would be basic understanding of biomedical sciences and life sciences, recent development in cell biologies, what are the advances in genetics, pharma services क्या है, hospital healthcare IT क्या है, nutrition science कैसे है, diagnostics, biotechnology, vaccine development, sanitization. Then the sixth point is general awareness on healthcare. इसके अंदर हमें पता होना चाहिए current happenings in healthcare and life science sectors, population health के बारे में पता होना चाहिए, epidemiology के बारे में पता होना चाहिए, basic healthcare programs in India, basic physiology and anatomy of human body, society and health, understanding of hospital management पता होना चाहिए, WHO and bodies of international health पता होना चाहिए, UNICEF वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए. फिर basic issues and challenges of healthcare business, verticals such as pharma, healthcare infotech, healthcare entrepreneurship and hospital management. फिर understanding of national healthcare programs like Ayushman Bharat Yojana, फिर RMNCH plus A, that is reproductive maternal neonatal child and adolescent health, universal immunization programs क्या है, national mental health programs क्या है, ऐसे बहुत सारे programs जो कि national health programs के अंतर्गत आते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए. ठीक है. फिर introduction to hospitals, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स क्या हैं, है ना, हेल्थ केयर सिस्टम कैसे चलता है इंडिया में, CHC PHC, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल्स क्या हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल्स में जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ऑफ मुंबई, मदुरई के में जो अरविंद हाई हॉस्पिटल है, चेन्नई में अपोलो है, वेल्लोर में CMC है, ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. फिर नेक्स्ट टॉपिक इज डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में कितने डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हम लोग हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो हमें जनरल खांसी सर्दी दिखानी होती है तो जनरल मेडिसिन में जाते हैं, सर्जिकल रिलेटेड इश्यूज सर्जरी डिपार्टमेंट, ऑब्स गाइनी डिपार्टमेंट फॉर वुमेन एंड प्रेग्नेंट लेडीज, पीडिया डिपार्टमेंट फॉर किड्स, एनेस्थीसिया, सुपर स्पेशलाइजेशन इन हॉस्पिटल्स क्या क्या होते हैं, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी एक्सेट्रा. फिर नाइन्थ पॉइंट है सपोर्टिव सर्विसेज इन हॉस्पिटल, CSSD क्या होता है ना, फार्मेसी, लाइनन एंड लॉन्ड्री, फूड एंड बेवरेजेस, डाइटरी सर्विसेज इन हॉस्पिटल. तो आउटसोर्स्ड क्या क्या है, इनसोर्स्ड क्या क्या है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए. इंजीनियरिंग सर्विसेज इन हॉस्पिटल्स, द नेक्स्ट पॉइंट which is heating, ventilation and air conditioning in hospital, civil electrical, water supply in the hospital. क्योंकि हॉस्पिटल बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिला के हॉस्पिटल रन होता है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. फिर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे होगा, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होता है हॉस्पिटल में, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे है, डिसिप्लिन में कैसे सब लोग अपना काम करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए. अकाउंटिंग एंड
कॉस्टिंग इन हॉस्पिटल्स कैसे है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है हॉस्पिटल में, कॉस्टिंग कैसे होती है हॉस्पिटल में, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ओवरलोड्स, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी मटेरियल एंड इक्विपमेंट इन हॉस्पिटल। तो क्या क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है ना, डायग्नोस्टिक्स हैं, थेरेप्यूटिक्स हैं, एक्सरे के बारे में जानो, सिटी स्कैन्स, एमआरआई, पेट सीटी, कैथ लैब्स, डायलिसिस, ओटी इक्विपमेंट्स, परचेजिंग एंड स्टोर इन द हॉस्पिटल। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा सिलेबस का इन्फेक्शन कंट्रोल एंड बायोमेडिकल वेस्ट। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शंस क्या हैं, दे प्रिवेंशंस क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। फिर next point is of the syllabus is legal aspects, laws pertaining to hospital and healthcare, consumer protection act क्या होता है, preconception and prenatal diagnostic techniques act क्या होता है, human organ transplantation committee in the hospital क्या है, infection control committee का काम क्या है, ethical issues of the hospital कैसे डील किया जाता है। फिर next point of the syllabus है management concept in hospital, HR management कैसे काम करता है, doctors, nurses, paramedicals, recruitment, selection, training, motivation, फाइनेंस मैनेजमेंट, बजटाइजिंग, देन मार्केटिंग ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज कैसे होती है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द सिलेबस वुड बी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, किस तरीके के डिजास्टर्स हो सकते हैं हॉस्पिटल में, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम किस तरीके से काम करती है, वेरियस कोड्स यूज ड्यूरिंग द डिजास्टर, कोड ब्लू, कोड ब्लैक, रेड एक्सेट्रा। तो ये सब कंप्राइज कर रहे हैं हमारा सिलेबस। एंड इन हर एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल